Good morning, children. Today we are starting revision of electrochemistry. Okay, I request all of you, if any of the question in any chapter you have not understood, you can send personal message also. Okay, I will solve your problem. Today we are solving some questions asked in the previous year board exams. So this was the question asked in 2019 board. Okay, the question is, how many spoons can be electroplated by silver when 5 ampere current is passed through electrolytic cell of AgNO3 for 2.5 hours. Efficiency of the cell is 80% and 0.01 gram of Ag layer is deposited on each spoon. बेटा एक इसमें नया टर्म अपने पास आया, दैट इज एफिशिएंसी इज 80%. दैट वी हैव टू अंडरस्टूड. नाउ लेट अस स्टार्ट. Q इज इक्वल टू आई टी. यू नो सॉल्यूशन में पहला काम क्या करेंगे? Q इज इक्वल टू आई टी. सो व्हाट इज आवर आई? करंट कितना है बेटा? 5 एम्पियर. What is our time? 2.5 hours. You know, 2.5 into 60 into 60. We have to convert it in second. So when you will convert, let me show you. It is 45,000. Okay, so 45,000 we will write here. 45,000 coulomb. Okay, then we have to convert it in Faraday. So divide 45,000 by 9 Faraday. So 96,487. 45,000 divided by 96,487 will give us, क्यों बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 96,487 कूलम इज इक्वल टू 1 फैराडे. सो 0.466. ओके, सो हियर आई विल राइट इज दिस इज कूलम. सो दिस इज इक्वल टू 0.466 फैराडे. यू अंडरस्टूड ना? ये कहाँ से आया? डिवाइड कर दो इसको 96,487 से. Now this we have got. अब what is the reaction at cathode? Cathode पे रिडक्शन होता है. So at cathode, what is the reduction? Ag plus will take one electron and will give Ag solid, यानी 1 mole. So 1 Faraday gives, ये 1 Faraday है ना बेटा? 1 Faraday से 1 mole Ag is equal to कितना? 108 ग्राम. 1 मोल Ag का मॉलिक्यूलर मास क्या है? 108 ग्राम. सो अपने पास कितने फैराडे हैं? 0.466 इज इक्वल टू हाउ मच? सो 0.466 into 108. When you will multiply, it will give you 50.328 gram. Now the more till here तो we know. सेल एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है बेटा? ये फॉर्मूला आपने को लर्न रखना है. दैट इज सेल एफिशिएंसी इज इक्वल टू प्रैक्टिकल वैल्यू अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू. याद ही रखना, लिख लेना. थियोरेटिकल वैल्यू इंटू 100. सो व्हाट इज़ आवर प्रैक्टिकल थियोरेटिकल वैल्यू? हमने अभी निकाला जो, दैट इज़ थियोरेटिकल वैल्यू. प्रैक्टिकल वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट. सो एफिशिएंसी कितनी दे रखी? 80 इज इक्वल टू प्रैक्टिकल वैल्यू, यानी ये क्या है? मास है. ये मास हमने थियोरेटिकल मास हमने कैलकुलेट कर लिया. थियोरेटिकल मास यानी इतना, इट शुड बी देयर. सो प्रैक्टिकल वैल्यू मास अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू into 100. Therefore practical mass is equal to this into this upon 100. So it is 40.262 gram. 40.262 gram. ठीक है. 80 into this upon this. So this we have calculated. Practical mass मिल गया. Now how many spoons can be electroplated? तो ये अपनी प्रैक्टिकल वैल्यू इतनी है, इससे ही निकालना होगा ना बेटा कितने स्पून्स. सो 0.01 ग्राम Ag for 1 spoon. Therefore
40.262 gram Ag for how many spoons? So 40.262 into 1 divided by 0.01. So let me divide 40.262 divided by 0.01 is equal to 4026.2. 4026.2 spoons. This answer is perfectly right. If you write 4026 spoon, क्योंकि 0.2 spoon क्या होता है, so that then also it is correct. So 4026 spoons can be correct answer. ठीक है बेटा, और अगर तुम ये भी लिखते हो तो that is also perfectly right. This question is also very important. This was asked in which board? 2018 board. This question was asked in 2018 board. So you have to see how the board, what is the pattern of questions in board examination. You can have an idea. So we have to go through all the questions. Last year तो direct NCERT के question आए थे. Okay. So this question we will solve. Here this is the cell. So right side cathode minus anode तुमको पता ही है ना, और SN की वैल्यू भी दे रखी है. तो ये क्या दे रखा है याद रखना, ये +0.14 यानी SN2 + SN नहीं है, ये इसका ऑक्सीडेशन है. ठीक है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है. मेरी बात समझ में आई? SN/SN2+ यानी दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज गिवन. So what will be the reduction potential? -0.14 volt. Now let us write here. E0 cell solution is equal to E0 cathode minus anode. E0 anode, right? So what is our cathode beta? Hydrogen. So 0 minus what is our E0 anode? -0.14. क्यों? क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो रिडक्शन पोटेंशियल विल बी जस्ट नेगेटिव ऑफ दिस. तो आई विल राइट हियर -0.14 volt. So in total it will be 0.14 volt. In this way we got the E0 cell. इतना भी कोई करता है ना, इसके 0.5 मार्क्स होते हैं. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में मार्क्स डिवाइडेड होते हैं बोर्ड में. सो नाउ वी विल राइट द रिएक्शन. SN solid plus it will lose 2 electron, so hydrogen 2H will take 2 electrons, so it will become SN2+ and SN2+ का क्या है दे रखा है 0.05 मोलर प्लस H2. ठीक है, N इससे क्या पता चला, N is equal to 2. So formula we will write E cell is equal to E0 cell minus 0.059 divided by N log एनोड कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कैथोड कॉन्सेंट्रेशन. अब कैथोड में देखना ध्यान से बेटा, हमने यहाँ H+ लिखा, बट H+ के ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा बिकॉज 2H हमने बैलेंस करने के लिए 2H+ किया है. ये बात हमें कभी भी नहीं भूलनी है. सो लेट अस राइट हियर व्हाट इज आवर E cell. It is given 0.092. Okay, so we will write here 0.092 is equal to 0.14 volt minus 0.059 upon 2 log SN का concentration 0.05 divided by H+ ion. ठीक है, हमें pH फाइंड करना है. pH मतलब क्या होता है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. ये बात तुमको दिमाग में रखनी है. pH की मीनिंग क्या होती है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. ये तुम्हें ध्यान में रखना है. सो नाउ वी विल राइट हियर 0.014 को इस साइड लें, 0.092 माइनस 0.14 इज इक्वल टू माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0295. ये तो अब इतनी बार क्वेश्चन कर चुके हैं कि अपने को याद ही हो गया है. 0295 इज इक्वल टू लॉग माइनस दिस log 0.05 05
डिवाइडेड बाई एच प्लस स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ध्यान रखना। सो इफ़ आई डू 0.092 माइनस 0.14 इज इक्वल टू दिस, डिवाइडेड बाई, इसको इधर ले आए तो ये मल्टीप्लिकेशन है तो इधर डिवीजन हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.0295 इज इक्वल टू minus 1.6271. So here I will write minus 1.6271 is equal to minus, ये माइनस इधर, ये माइनस लॉग 0.05 अपॉन एच प्लस। करेक्ट, ये बात समझ में? इसको उठा के इस साइड ले आए तो ये, हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन में, तो दिस साइड इट विल बिकम डिवीजन। सो दिस इज द वैल्यू वी गॉट। Now what we'll do, minus 1.6271 is equal to minus log, ये माइनस को बाहर रहने दो, log 5/100 है ना, तो log 5/100 यानी log 5 इंटू 10⁻⁻²। ये बात समझ में आई? log दिस प्लस ये ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 2 log एच प्लस माइनस log, ये बाहर ये माइनस है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, so 2 log एच प्लस। नाउ वी विल राइट हियर, देन वी विल राइट माइनस log माइनस 1.6271 इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर ही रहने दो, log 5 और इनटू है तो माइनस 2 log 10, सो माइनस 2 log 10 इज 0, सो इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस 2 log एच प्लस। ठीक है, सो माइनस 1.6271 इज इक्वल टू log 5 की वैल्यू देखते हैं तो 0.6990, 50 का 0 में देखोगे, माइनस 2 प्लस 2 log एच प्लस, सो हियर इट विल बिकम माइनस 1.6271 इज इक्वल टू माइनस 2 में से इसको माइनस करेंगे, सो इट विल बिकम माइनस 1.3010 प्लस 2 log एच प्लस, so is equal to minus 1.6271, ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो प्लस को इस साइड लोगे तो माइनस 1.3010 इज इक्वल टू 2 log माइनस 2 log एच प्लस, सो दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो माइनस 2 point, let me add 1.6271 plus 1.3010 is equal to 2.92, so minus 2.9281 is equal to 2 log एच प्लस। अपने को चाहिए क्या, पीएच के लिए माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये 2 को भी हटाओ, 2 इधर ले आओ, अपॉन डिवाइड कर दो, सो दिस डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, और माइनस साइन इस साइड चाहिए, मेरी बात समझ में आई? सो वी विल राइट माइनस 2.9281 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.46, 2.9281 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू लॉग एच प्लस। ठीक है, तो दिस विल गिव अस, डिवाइड करना है तो 1.46। ठीक है, तो ये माइनस को उठा के इधर ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि वी नीड माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, देयरफॉर आंसर इज पीएच इज इक्वल टू 1.46, ये हमारा आंसर है। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ पीएच। ओके, सेम क्वेश्चन है, यू सी, सिर्फ सॉल्यूशन करते समय लॉग और ये प्लस माइनस की साइन करते समय यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ओके बेटा, चलो, फॉर टुडे दिस इज इनफ, थैंक यू।